Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic the most important objective questions of chapter 3 electrochemistry of class +2. And in this today video, I have covered the questions already asked in the previous board exams. So let's start our first question. The first question is the quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3 is. Options are 1 Faraday, 6 Faraday, 3 Faraday, 2 Faraday. So हमें पूछा गया है कि 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए किससे Al2O3 से और हमें देखना है कि उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन HBSC 2017 सेट सी. सो देखिएगा आप हम कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है Al2O3. इट मींस हम पहले Al2O3 में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. Then what will happen? Al2O3 will dissociate into aluminium ion and oxide ion. यहां जाएगा 2, यहां 3. It means 2 aluminium and 2 Al plus 3 ion बनेंगे और 3 O minus 2 ion. Then what will happen? These Al plus 3 ion will move towards cathode. At cathode. टू Al plus 3 जाएंगे. अब आप देखेंगे इन पे कितना चार्ज है टोटल. 2 into plus 3 यानी कि plus 6. They will gain 6 electron and they will convert into 2 mole of aluminium. So 2 Al plus 3 ion will gain 6 electron and they will convert into the 2 aluminium. So these are not 6 electron, these are the 6 mole electron. And this is also the mole. It means for 2 mole of aluminium, we have to give 6 mole of electron. So unitary method. For 2 mole of aluminium, we require 6 mole of electrons. So for 1 mole of aluminium, we require 3 mole of electron. And we know 1 mole of electron carry 1 Faraday charge. So 1 mole पे कितना चार्ज है? 1 Faraday. So 3 mole of electrons carry 3 Faraday charge. So it means we have to give 3 Faraday charge. या ये कहेंगे the 3 Faraday charge is required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3. So correct answer is C option. This is our first question. Our next question is which of the following statement is correct? First option है electrolysis of dilute NaOH gives H2 at cathode and O2 at anode. B option है electrolysis of aqueous H2SO4 gives H2 at cathode and O2 at anode. C option है electrolysis of aqueous KF solution gives F2 at cathode. And D option है none of this. This question has been asked in HBSC 2017 set C. तो हमें ये देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर. अब कैसे है यह मैं ये भी बताना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4. इट मीन एक तो हमारे पास H2SO4 है और एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है, वाटर. हमने पहले H2SO4 में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये क्या टूटेगा? 2H पॉजिटिव प्लस 1SO4 माइनस 2. और H2 जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे पार्शियल डिसोसिएशन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब आप देख रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट टैंक में कैटायन सिर्फ कौन से हैं? H पॉजिटिव. सो दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. H पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन के क्या बन जाएगा? H. लेकिन नेचर में H किस फॉर्म में पाया जाता है? H2. तो हमें यहाँ 2 करना है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई. It means cathode पे ये रिएक्शन होगी 2H positive plus 2 electron that give H2. It means hydrogen gas is liberated at cathode. At anode पर कौन जाएंगे? अनायन. अब अनायन हमारे पास 2 है. one is सल्फेट, second is OH नेगेटिव. तो जब भी एक से ज्यादा टाइप के अनायन है तो हम यहाँ देखेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल.
तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है OH नेगेटिव आयन का लो है, सो दे विल गेट डिस्चार्ज एट एनोड इन प्रेफरेंस टू SO4-2. सो इट मींस OH नेगेटिव जाएंगे एनोड पर, इन पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये बनाएंगे OH. और OH के केस में आपको ध्यान रखना है 4 OH आपस में मिलते हैं, दे विल फॉर्म 2 वाटर प्लस O2. अब आप देखेंगे यहाँ 4 है तो इधर 4 करना पड़ेगा, इस जहां 4 तो क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, और कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए. तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई ताकि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए. देखिएगा 2 2 जा 4H पॉजिटिव एंड 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन और 1 2 जा 2 2H2. सो एट कैथोड H2 गैस इज रिलीज्ड, या ये कहेंगे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड या हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड. एंड एट एनोड पे क्या आ रहा है ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, या ये कहेंगे ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड. सो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज बी. Next question is question number 3. Nernst equation is shown by the expression. आपके पास 4 ऑप्शन हैं. फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस एन ई नॉट इंटू एफ. सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NRT ln K. सी ऑप्शन है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ मेटल कंसंट्रेशन अपॉन Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन. एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से नर्नेस इक्वेशन कहाँ यूज होगी. तो यदि हम सबसे पहले बात करके चले नर्नेस इक्वेशन यूज कहाँ होती है हमारे पास, देखिएगा जो नर्नेस इक्वेशन देखिए, जो नर्नेस इक्वेशन है, this equation is used in that cases when concentration of electrolyte is not equal to 1 molar. जिस समय इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, इट मींस या तो 1 मोलर से ज्यादा है या 1 मोलर से कम है, वहां पर नर्नेस इक्वेशन यूज होगी. एंड इट यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम द गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, या हम ये कहें ईएमएफ ऑफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने की यूज होती है, किससे, फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यूज. सो जरा देखिएगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है या कौन सी ऑप्शन नर्नेस इक्वेशन को शो कर रही है. फर्स्ट में देखिए डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस एन ई नॉट इंटू एफ. तो डेल्टा G0 क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फॉर एनर्जी चेंज, वो इससे फाइंड आउट नहीं होता. सेकेंड है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NRT ln K, ये भी नहीं. सी ऑप्शन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ मेटल कंसंट्रेशन अपॉन Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन. यहाँ ई सेल क्या है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल. इट इज आल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल. और जो ई नॉट सेल है ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. एन यहाँ क्या चीज है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरऑल सेल रिएक्शन. एम होगा मेटल कंसंट्रेशन और Mn पॉजिटिव क्या है, दिस इज द मेटल आयन कंसंट्रेशन और इट इज आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया, ई सेल. ई सेल मीन ईएमएफ ऑफ सेल, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल. और नर्नेस इक्वेशन यही फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल. कब, whenever the concentration of electrolyte is not equal to 1 molar. So C option जो है this is the right answer. So नर्नेस इक्वेशन क्या है हमारी, ध्यान से देख लीजिएगा, E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log of metal concentration upon Mn positive ion concentration. Next question. Now the question number 4. For the given cell reaction Mg oblique Mg plus 2, बीच में 2 वर्टिकल बार है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज. Cu plus 2 oblique Cu. 4 ऑप्शन है आपके पास, Mg as cathode, Cu as cathode, Cu is oxidizing agent, none of the above. We have to find out the correct answer, कि correct answer कौन सा है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो दिया है, what is this? This is the
representation of any electrochemical cell. So this is the electrochemical cell representation. अब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो ये सेंटर में 2 वर्टिकल बार्स आते हैं, इट रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये जो Mg से Mg+2, इट एक्ट एज एनोड, ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। और राइट साइड वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैथोड को। इसका मतलब क्लियर हो गया कि Mg/Mg+2 पार्ट एनोड को शो कर रहा है। तो एनोड किस चीज की बनी होगी? मैग्नीशियम मेटल की। और Cu+2/Cu पार्ट कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैथोड किसकी बनी है? Cu की। एक तो पहली बात ये। सेकंड थिंग ध्यान रखिएगा, एनोड पर हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। अब जरा ऑप्शंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है Mg एज कैथोड, जबकि आपने चेक किया है Mg तो एनोड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है Cu एज कैथोड, और आपने चेक किया है कैथोड है क्या हमारे Cu, इसका मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन अभी हमें और ऑप्शंस भी देखने हैं। अब थर्ड ऑप्शन है Cu इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी हमें चेक करना हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले जो भी रिप्रेजेंटेशन है उससे ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाएंगे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे बनेगी जरा देखिएगा। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? Mg, दैट विल गिव Mg+2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? Cu+2 है, उससे Cu बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं वो क्या आएगी हमारे पास? ओवरऑल सेल रिएक्शन। दैट इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या होगी? Mg प्लस Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 प्लस Cu। सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए जाएंगे। सो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई Mg+Cu+2, दैट इज Mg+2 प्लस Cu। अब हम इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में ही आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं थोड़ा सा रब करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख के वहां से शुरू करता हूं मैं। सो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आई है? Mg+Cu+2, दैट विल गिव Mg+2 प्लस Cu। अब हमें इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे Mg से जब Mg+2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। Cu+2 से Cu बन रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में डिक्रीज हो रहा है कॉपर मेटल का, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट रिडक्शन, या दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और वो पहले वाली Mg से Mg+2 बनना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम ये भी देखते हैं कि जहां से हमारे पास अब इसमें से Mg जो है, Mg से Mg+2 बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो यहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जो ये है हमारे पास Mg, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और Cu+2 है, दिस विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? विच विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा Cu+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Mg ने रिड्यूस किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? Cu+2। और मैग्नीशियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा सी ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? Cu इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि Cu नहीं है, कौन है? Cu+2। कौन है? Cu+2। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन हमारा आ चुका है। इट मींस हमारा इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। तो Cu एज कैथोड, दिस इज आवर राइट आंसर।
से ध्यान से देखिएगा कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन से ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजेशन क्या होगा, द सब्सटेंस विच विल गेन इलेक्ट्रॉन, उल्टा चलना है। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, द सब्सटेंस विच विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg ने लूज किए हैं इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट, Cu+2 ने गेन किए हैं, ये ऑक्सीडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the number of Faradays required to reduce 1 mole of MnO4 negative into Mn+2। चार ऑप्शन है, 5 Faraday, 2 Faraday, 1 Faraday, 7 Faraday। ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है। सो आपको देखना है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव है, उससे Mn+2 बनाना है, तो हमें कितने फेराडेस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे MnO4 नेगेटिव में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने +1 में रिडॉक्सिडेशन चैप्टर पढ़ा है। हम अज्यूम करेंगे सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव, उसे हमने क्या मान दिया, H। तो 1 इंटू H, Mn के 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 4 है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन में क्या होता है, -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है आपके पास, यहाँ -1। सो H -8 इक्वल टू -1, H इक्वल टू क्या होगा, -1 + 8, आंसर क्या होगा, +7। सो MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर क्या है, +7 है, किसमें, इन MnO4 नेगेटिव। सबसे पहले तो हमने यही निकाला। अब 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में बनाना है, बदलना है। इट मींस हमें 1 मोल Mn+7 आयन है उसे Mn+2 आयन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा जरा यहां देखेंगे। अब मैं इसके रब कर रहा हूं थोड़ा सा। इट मींस हमें पूछा गया है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में कन्वर्ट कीजिए, और अभी हमने Mn का ऑक्सीडेशन निकाला +7। इट मींस 1 मोल Mn+7 को Mn+2 में कन्वर्ट करना। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, बट दीज आर नॉट 5 इलेक्ट्रॉन, दीज आर द 5 मोल इलेक्ट्रॉन। एंड वी नो the charge present on 1 mole electron या the charge due to 1 mole of electron is called 1 Faraday। तो यहां में कितना चाहिए, 5 mole electron। it means the quantity of charge required is equal to, that is the 5 Faraday। so हमें टोटल 5 Faraday चार्ज रिक्वायर्ड है। तो आप 5 Faraday देखेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। आपने बैलेंस किया है यहाँ 1 मोल ऑफ Mn+7, तो देखिए 1 इंटू +7 चार्ज, जबकि राइट साइड क्या है, 1 इंटू +2, लेफ्ट साइड +7, राइट साइड +2। तो +7 में क्या ऐड किया जाए कि +2 बन जाए, -5 मीन 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नर्नेस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल। हमें इस सेल रिएक्शन के लिए जो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन दी है, इसके लिए नर्नेस इक्वेशन लिखनी है। अब नर्नेस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है इसे ओवरऑल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही सेम जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। सेंटर में साल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगी, राइट साइड कैथोड जिस पर रिडक्शन होगी। ये पीटी क्या बता रहा है, प्लेटिनम, ये मेटल को बता रहा है कि प्लेटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा, Sn दैट गिव Sn+2। जब इसे बैलेंस करेंगे तो राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में लेफ्ट साइड H पॉजिटिव, इधर H2। पहले एटम बैलेंस किया, उसके चार्जेस की, तो लेफ्ट साइड टोटल चार्ज 2 इंटू +1 + 2, जबकि राइट साइड 0 है तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए।
टू इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ हल्का सा क्लैरिटी का इशू रह गया है। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या होगा, Sn प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, that will give Sn plus 2 plus H2 plus 2 electron. 2 से 2 कैंसल, सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब नर्नेस इक्वेशन क्या है हमारे पास, हम जानते हैं नर्नेस इक्वेशन में पढ़ा है, टू इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल। सो अकॉर्डिंग टू नर्नेस इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of product concentration upon reactant concentration। होता क्या है, log of product concentration upon reactant concentration, और जो उनके कोफिशिएंट्स है वो उनकी पावर्स बन जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, सो अब जरा देखिएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट मैं क्या कर रहा हूं। अब यहां हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, एक तो Sn+2 है और एक H2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Sn+2 कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट 1 है तो पावर क्या आएगा 1 इनटू H2 गैस के कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या जाएगा 1 अपॉन रिएक्टेंट साइड में आया Sn की कंसंट्रेशन, पावर क्या होगा 1 इनटू अगला कौन सा है H पॉजिटिव और उसकी कोफिशिएंट क्या है 2, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पावर क्या आएगा 2, दिस इज आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम यदि देखें, वन इज द H2 गैस कंसंट्रेशन और एक है Sn, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है H2 गैस कंसंट्रेशन वो भी 1 हो जाती है, और साथ ही साथ Sn टिन मेटल की कंसंट्रेशन वो भी 1। तो जब हम इन दोनों कंडीशंस को यहां पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा हमारे पास, आप देखिएगा पहले तो ये आ रही थी, लेकिन जब ये दो कंडीशन पुटअप करी तो उस समय ये दोनों क्या है यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, और उस समय क्या होगा हमारे पास फाइनली क्या होगा, मैं फाइनली बता रहा हूँ, मैं ऊपर थोड़ा रब कर रहा हूँ, मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ। तो जब ये दोनों वैल्यूज रखेंगे तब उस समय क्या होगा हमारे पास, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ, ऊपर बच जाएगा Sn+2 कंसंट्रेशन पावर 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पावर 2। सो दिस इज द नर्नेस इक्वेशन फॉर दिस सेल रिएक्शन। हल्का सा बता देते हैं, Sn+2 की पावर यहाँ 1 है। Clear? This is the Nernst equation for the following cell. Next question. Name two metals which are extracted electrolytically. तो हमें ये पूछा गया है कि कौन सी मेटल है जिनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द मेटल विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप, ये कहेंगे जो ऊपर ऊपर पाई जा रही हैं, ठीक है, अबव द हाइड्रोजन, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या ये कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हमारे पास जैसे सोडियम है, सोडियम Na हो गया, एल्यूमिनियम Al हो गया। सो ये दो मेटल जो है दे आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, या दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन साल्ट्स, ऑफ द मोल्टन साल्ट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट बी में पूछा गया है। नेम टू मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, सोडियम एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके अलावा भी मेटल्स हो सकती है, यहाँ पर 2 बोला गया है तो मैंने इसलिए 2 बताई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्करी सेल gives a constant voltage of 1.35 volt during its lifetime. Why? कि जो मर्करी सेल है उसकी वोल्टेज जो है 1.35 वोल्ट फिक्स रहती है पूरी लाइफ टाइम में, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2019 में सेट बी में पूछा गया है। अब जरा देखिएगा ऐसा क्या होता है कि मर्करी सेल में वोल्टेज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। अब जरा हम ये देखें कि मर्करी सेल में रिएक्शन क्या होती है। पहले तो बात आएगी रिएक्शन से। व्हाट इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन द मर्करी सेल? सो मर्करी सेल में जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो क्या है? Zn solid plus HgO solid that gives ZnO solid plus Hg liquid. सो ये रिएक्शन हो रही है किसमें? मर्करी सेल में। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो जरा इस ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम यदि ध्यान से देखें तो इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में देयर इज नॉट एनी आयन, कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, और यदि आयन होगा तो उसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है। ये सभी क्या है हमारे पास? सॉलिड है, लिक्विड है, इनकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगी। तो आप इसमें क्या बताएंगे? इट इज बिकॉज द ओवरऑल सेल रिएक्शन does not involve any ion whose concentration can change during its lifetime. So इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई ऐसा आयन है ही नहीं जिसकी कंसंट्रेशन लाइफ टाइम में कभी भी चेंज हो, या ये कहें कि इसकी जब तक की लाइफ है उसमें चेंज हो। इट मींस जब आयन नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, देन इट विल ऑलवेज गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब इस साल ये जो हमारे पास कॉमर्शियल सेल्स का टॉपिक है ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फेराडे इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फेराडे इज इक्वल टू। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बार आने के चांसेस है। सो आपको यहाँ 1 फेराडे की वैल्यू बात दी गई है कि 1 फेराडे इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। ए ऑप्शन है 96,500 कूलम, बी है 49,500 कूलम, सी ऑप्शन है 22.4 कूलम, और डी ऑप्शन है 6,000 कूलम। आपको देखने इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 फेराडे होता क्या है? इट इज द चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? 1 फेराडे। और अभी भी जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आती है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यानी कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई। सो 1 फेराडे क्या होगा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस वी विल मल्टीप्लाई द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद द वैल्यू, दिस वैल्यू इज द अवोगाड्रो नंबर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 96,500 कूलम। सो 96,500 कूलम क्या है? दिस इज इक्वल टू द 1 फेराडे। सो ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा कि 1 फेराडे है क्या? इट इज अ चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the quantity of charge required to obtain 1 mole of Cu from Cu+2। बिल्कुल ऐसा मिलता जुलते एक या दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि 1 मोल Cu बनाना है, किससे बनाना है? Cu+2 से। तो ये Cu+2 है, हमें Cu और कितना बनाना है? 1 मोल। तो बैलेंस करेंगे, पहले चार्ज देखें, 1 इंटू +2 +2, लेफ्ट साइड टोटल चार्ज +2,
और यहाँ क्या है 1 इंटू सी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ 0। तो +2 में क्या ऐड किया जाए कि 0 बन जाए, लेफ्ट साइड हमें देखना है बड़े वाले में क्या ऐड किया जाए कि छोटे वाला बन जाए। तो लेफ्ट साइड +2 चार्ज है, राइट साइड 0, तो +2 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो आपको देखिएगा मैंने आपको बताया था ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दीज आर द 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स 1 मोल ऑफ Cu+2 से यदि हमें 1 मोल ऑफ Cu चाहिए तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है, फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 फैराडेज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला 1 फैराडे, दूसरा 6 फैराडे, तीसरा 3 फैराडे, चौथा क्या है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे, डी ऑप्शन जो है दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is SI unit of conductivity is, this is the important expected question. इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है m स्क्वायर, सेकंड इज द सीमेंस सेंटीमीटर, थर्ड इज सीमेंस पर मीटर, फोर्थ ऑप्शन है ओम। तो हमें देखना है इनमें से कंडक्टिविटी का यूनिट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिविटी होता क्या है, इसे डिनोट करते हैं कप्पा से। सो होता क्या है कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। और रेजिस्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, R × A/L। सो यदि हम कप्पा देखें तो कप्पा क्या देगा, L/R × A। ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R × L/A। 1/R, R क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का यूनिट क्या है ओम। लेंथ सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी। सपोज करो सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यदि ये मीटर है, यदि लेंथ मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अभी हम इसे यदि देखें तो हमारे पास क्या होगा, 1/ओम को क्या बनेंगे ओम इनवर्स, और मीटर स्क्वायर क्या होगा पर मीटर। और ओम इनवर्स को एक और सिंबल से बोलते हैं एस, एस क्या होता है सीमेंस, तो सीमेंस पर मीटर। ये तो हमारे पास किसका आ गया है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। और हमें पूछा भी यही क्या है, ऐसा यूनिट कंडक्टिविटी का क्या है। अब जरा ये चेक करें कि क्या बाकी सभी हैं। यहाँ m क्या है, दैट इज द मोल पर लीटर। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है सीमन सेंटीमीटर, जबकि ऐसा नहीं आ रहा। सी ऑप्शन है सीमन पर मीटर, आप देखिएगा सीमन पर मीटर ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। और डी जो है ओम, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन सीमन पर मीटर हमने फाइंड आउट भी किया है, तो सी ऑप्शन जो है दिस इज अवर करेक्ट आंसर। So this is the SI unit of conductivity, and this is the important expected questions. Next question, the potential difference developed between the electrode and electrolyte is called, कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे बोलते क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the tendency of an electrode to either lose or gain electrons, this is called electrode potential। और यदि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है then it is also called standard electrode potential, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से शो करते हैं। So this is the potential difference developed between the electrode and electrolyte। So these all are the questions, these all are the important multiple choice question and objective questions related to chapter 3। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.